So good morning, students. Today we'll begin our lecture 31, the last lecture of this unit, that is unit number 5. So far we have seen in this particular unit how to represent the graph. We have seen two representations, adjacency matrix and adjacency list. Then we have seen how to traverse graph. We have seen two techniques, DFS and BFS. You know, DFS makes use of stack and BFS makes use of a queue. Then we have seen what is the concept of a spanning tree and a minimal spanning tree. We have also seen two algorithms to calculate the minimal spanning tree. One is the Prim's algorithm, another is the Kruskal's algorithm. We have also seen that the Prim's algorithm starts from a point, that is, starts from a vertex. Okay, whereas Kruskal's algorithm selects edges. Okay, so this is point, and rather this is a vertex, and this is an edge. And then we started with the topic shortest path, and in that we have seen the Dijkstra's algorithm. We know that the Dijkstra's algorithm starts working from a node, and then it finds the shortest path from a source node to the rest of the remaining nodes. Okay, so if we have this node A, then it calculates the path A to B, then A to C, A to E, A to F, A to K. So it is also called as single source, multiple destination. Okay, it is single source and multiple destination. So if A is the source, you can get paths from A to B, A to C, A to K, A to E, A to F. So this is what you will get. Now, today what we will see is the all pair shortest path. All pair means if you are given this graph, in this we have seen only A to B, A to C, A to K, A to E, and A to F. When we talk of all pairs, this also means what is the shortest path from B to A, B to C, B to K, B to F, B to E. Not only B will be the source, there can be C as the source, then K as a source, then F as a source, and E as a source. So from every vertex, what is the shortest path to all other vertices? This entire calculation is called as all pair shortest path. All pairs. Here we have only 1, 2, 3, 4, 5 pairs in case of Dijkstra for this particular graph. But when you talk of all pairs, it starts with source A and then calculates the remaining. Then it starts with B as the source and calculates the remaining path, C as the source, and then the remaining, and so on. So can you use the Dijkstra's algorithm to find all pair shortest paths? Do you have an answer? Can you use Dijkstra's algorithm to find all pair shortest path? I hope I am audible. मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई ग्राफ आपको ऐसा दिया गया है और आपको पता है कि अगर आपने डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज किया तो ये ए से बचे हुए सारे वर्टेक्स तक का वो शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देगा, तो ये ऑल पेयर नहीं होता है। ये डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ऑल पेयर नहीं होता है, वो क्या होता है, एक सिंगल सोर्स और देन मल्टीपल डेस्टिनेशन होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये ऐसा है कि क्या आप डिक्स्ट्रा का एल्गोरिथम यूज करके ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हो? जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या पेयर्स होने वाली है। ए टू बी का पाथ निकलेगा, ए टू डी का निकलेगा, ए टू सी का निकलेगा,
ए टू ई का निकलेगा, ए टू एफ का निकलेगा, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, ये इतने पाथ निकलेंगे। और इसमें ये एरो होते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन भी हो सकता है, डायरेक्टेड ग्राफ हो सकता है। तो इतने ही पेयर्स का निकला है, हमें ऑल पेयर्स का चाहिए, मगर और पेयर्स आने वाले हैं यहाँ पर। तो ये बी के लिए निकलेगा, फिर सी के लिए निकलेगा, फिर डी के लिए निकलेगा, फिर ई के लिए और एफ के लिए। तो क्या हम सब पेयर्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं क्या यूजिंग डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम? यस और नो? आई होप यू डोंट हैव एन आंसर, राइट? आपके पास जवाब नहीं है शायद। तो द आंसर इज यस, यू कैन यूज द डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम टू फाइंड ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, बट उसके लिए डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एक ए सोर्स करके उसको एग्जीक्यूट करो पहली बार, फिर बी को सोर्स नोड मानो, फिर बी ए का पाथ निकलेगा, फिर बी डी का पाथ निकलेगा, फिर बी सी का पाथ निकलेगा, फिर बी ई का पाथ निकलेगा, फिर बी एफ का पाथ निकलेगा। सेकंड टाइम बी को सोर्स नोड किया था, अब तीसरी बार सी को सोर्स नोड करो, सब पाथ निकालो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास में n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, देन यू विल हैव टू एग्जीक्यूट डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम n number of times to find all pair shortest path. Okay, so is it possible to calculate all pair shortest path using Dijkstra's algorithm? Yes or no? यस। Yes, but क्या करना पड़ता है वो करने के लिए? उस एल्गोरिथम को n टाइम्स एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ओके, आज क्या सब क्लास की एनर्जी डाउन है क्या? रितेश घुले नाही आहे क्या आज? आहे ना सर, मीच बोलतोय। बोलत नाही पण Hello. मला आवाज येत नाही तुझा एवढा। ठीक आहे सर। हा, आता बरं आला होता आवाज, पण बाकीच्यांनी पण बोलत चला, काहीतरी उत्तर द्या बरं का। शेवटचं लेक्चर आहे आज, ठीक आहे? Yes. Okay. So the Floyd-Warshall algorithm is an algorithm for finding shortest paths in a directed weighted graph with positive or negative edge weights. See, we can do this for positive also and negative edge weights also. What we had seen earlier in Dijkstra algorithm, it did not work for negative edge weights, but Floyd-Warshall algorithm works with positive or negative edge weights also. A single execution of the algorithm, will find the lengths of the shortest path between all pair of vertices. Single execution. Dijkstra का जब हम लोग यूज करके ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने का बोल रहे थे, तो वहां सिंगल एग्जीक्यूशन में नहीं बात बनती है, वहां पर हम लोगों को n टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बट हियर one single execution of the algorithm will find the lengths of the shortest path between all the pair of vertices. The strategy adopted by the Floyd-Warshall algorithm is dynamic programming. So in the previous lecture, I told you that Prim's algorithm, Kruskal's algorithm, and Dijkstra's algorithm. These three algorithms are greedy algorithms, or these three algorithms follow the greedy algorithm strategy. And this particular algorithm, that is the Floyd-Warshall algorithm, uses dynamic programming concept. So the time complexity of this algorithm is order of VQ, where V is the number of vertices in the graph. Now, what are the advantages of Floyd algorithm? One, it is very simple and it is very easy to implement. Since there are only 3 for loops. If you see, there is an outer for loop and there are 2 inner loops.
and there is a if condition. So you give one matrix as input, adjacency matrix as input. You use this for 3 for loops, and the result is the cost matrix containing the shortest paths. It is a very simple algorithm. But let us try to understand how it works. So you know this K, this will grow slowly. Hello? Am I audible? Is there any problem? Somebody was trying to say something. आसिफ आवाज आ रही है? मंदार नाईक? हो सर. ओके, मला असं वाटलं कोणीतरी काहीतरी म्हणतंय, मला कळलं नाही ते ऍक्च्युअली. ओके. So this for loop, outer for loop, this will grow very slowly. Okay. Then this for loop and then this for loop. Now let us try to understand what is happening over here. This outer for loop will supply the value from 0 to n. So if you have the nodes 0, 1, 2, dot, 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 n, that means n plus 1 nodes, okay, including the 0. So if you have these are the nodes. So what will happen? This will grow very slowly. And you look at this, ik, kj. If the total of ik plus kj is less than ij, if this split component is less than this combined component, then the combined component will be the split component. I'll explain this to you in the next slide, how this cost happens. So this I'll explain to you, but let us see the steps to calculate the cost matrix. Initial distance matrix, you know, we remove all the self loops and the parallel edges. We have seen this in previous lectures also. For all diagonal elements, the diagonal elements, you know, they represent a self loop. The distance value is 0. The distance value is 0 because we have removed all self loops. Then the vertices having direct edge between them, the distance value, that is weight of that edge, and vertices that do not have any direct edge between them, the distance value will be infinity. So let us do this step first. So we have a graph here. So we have a graph here. So let us see the initial step. You have vertices 1, 2, 3, and 4. So I'll name them first 1, 2, 3, and 4. And here too I'll write 1, 2, 3, and 4. Okay. So this is the matrix. So all the diagonal elements. So this is a diagonal element. It will be 0. This will be 0. This will be 0. And this will be 0. So this is the rule that we have seen. Self loop removed, parallel edges removed, diagonal elements will be 0, and then vertices that have a direct edge, weight of that edge, you need to write the weight of that edge. And if there is no direct edge, then it will be infinity. So let us write down the weights of the edge. Can you go from 1 to 2? See the diagram and tell me the weight. Yes, sir. 8. What is the weight? 8. 8. Can we go from 1 to 3? 8. No. Yes. No. Yes, sir. Direct. No, sir. 1 to No, 4? sir. Infinity. Yes, 1. Yes, sir. 1. 1. Okay, so this is about 1 now. Tell me about 2. 1. No. Infinity. Infinity. 2 to 3. Infinity. 1. 1. 1. 1. Infinity. 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 Now 3 to 1. Infinity. 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 Sir, 3 Infinity. to
1. 3, 2. Yes. Yes, 4. yes. 4, 2, 3 to 2. Infinity. Infinity. Now what about 4? 4 to 1. Infinity. Infinity. Okay, 4 to 2. 2. 4 to 2. 3. 9. 9. 9. 9. So this is our initial distance matrix, right? D0. Okay. So this is what we have seen. Remove all the self-contained. If there is a direct edge, then the distance value is the weight of that edge. And for vertices having no direct edge between them, the distance value is equal to infinity. Okay. So we have calculated the initial distance matrix and we have termed it as D0. Okay. And for calculating the subsequent matrices, we will use this formula. We'll use this formula. Now let us try to understand what is happening over here. Everybody please pay attention. Now since this is dynamic programming, you know, we have K here and we have I and J here. Okay. So if you see I to K, so distance from I to K, and second is distance from K to J. K to J. So I to K का distance और K to J का distance अगर इनका टोटल किया जाए और वो I to J से छोटा है तो ये वाला डिस्टेंस हमें अपडेट कर लेना है. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर I सपोज 1 है, ठीक है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, और J सपोज 2 है, नहीं K सपोज 2 है, ये I है, और J सपोज 3 है, और मैं यहाँ पर I to J का डिस्टेंस करता हूँ 1 to 3, और यहाँ 1 to 3 डायरेक्ट एज नहीं है, तो 1 to 3 का डिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी, राइट? सही है ना? Yes, sir. ठीक है ना? अब ये 1 to 2 डिस्टेंस 2 है समझो, और 2 to 3 डिस्टेंस 1 है, तो ये कॉस्ट ऑफ आई के मतलब 1 to 2 क्या आएगा? कॉस्ट 3. 2, और के टू जे कितना आएगा? के टू जे 1. मतलब 3 1. टोटल 1. 3. प्लस 1. अगर ये लेस मिलता है इससे, तो आईजे को हम अपडेट कर देंगे और क्या बोलेंगे कि यस देयर इज अ पाथ फ्रॉम 1 3 विद द वैल्यू 3. ये अपडेट कर देंगे हम लोग, बराबर. और आगे जाकर क्या हो सकता है, अब ये समझो हो गया आईजे 3 हो गया, समझो आई रहा 1, के अब रहा 4 और जे रहा 3, और आईजे का डिस्टेंस क्या है? 1 to 3. क्या अपडेट किया हम लोगों ने? 3. अब यहाँ ये आई है, ये है और ये जे है. 1 to 4 का डिस्टेंस कितना है? 1. 1. और ये 4 to 3 का डिस्टेंस 1. 1 plus 1 2 होता है. 2 3 है, तो 1 to 3 का नया डिस्टेंस क्या कैलकुलेट जाएगा? 2. ओके, ये समझ में आ गया ना ये स्टेप? Yes, sir. तो ये पूरा ये पूरा जो है ये ग्राफ के लिए ये होने वाला है. तो ये कैसे होगा? लेट मी टेल यू. तो सबसे शुरुआत में ये 1 जो रहेगा ना, ये के ये इधर 1 रहेगा, और मैं सिर्फ लीगल ये लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इलीगल कॉम्बिनेशन भी बनेंगे. मैं सिर्फ लीगल कॉम्बिनेशन बनाता हूं कि ये 1 बीच में जब रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ पर 3 4 रहेगा, राइट. दूसरा कॉम्बिनेशन 1 यहाँ रहेगा तो 2 यहाँ रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? 2 और 4 रहेगा, सॉरी 3 और 4 रहेगा.
और एक बार थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेजर। यहाँ 3 रहेगा तब यहाँ पे 2 और 4 रहेगा, और यहाँ 4 जब रहेगा तब यहाँ क्या क्या रहेगा? 2 and 3. ठीक है ना, ये लीगल कॉम्बिनेशन है। आप ये 1 को बीच में रख के, 1 को अगर बीच में रखा आपने, तो ये समझो I है, ये K है और ये J है, तो ये लीगल कॉम्बिनेशंस हो गए। काफी इलीगल कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये फॉर लूप में अगर K का वैल्यू 1 है सपोज, ठीक है, तो I जब 1 रहेगा तब J 1 2 3 4 बनेगा, राइट? तो ये 4 कंडीशंस बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाकर देख रहे हैं हम लोग। जब K की वैल्यू 1 होगी, I की वैल्यू 1 होगी, आपको मालूम है बाहर का फॉर है वो K का है, उसके अंदर फॉर है वो I का है, और उसके अंदर फॉर है वो J का है। तो जब K 1 रहेगा, J I 1 रहेगा, तब ये J 1 2 3 4 होगा, राइट? चारों वैल्यूज के लिए घूमेगा। तो पहले J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, J की वैल्यू 4। फिर ये I 1 से बढ़ेगा, I 2 हो जाएगा, फिर J 1 2 3 4 होगा, फिर I 3 होगा, फिर J 1 2 3 4 होगा, फिर I 4 हो जाएगा, फिर J 1 2 3 4 होगा। इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा? K2 K2 होगा, और ये फिर से रिपीट होगा, राइट? ऐसा है ना, करेक्ट? यस सर तो ये जो है ये 4 बार होगा, तो ये 4 बार होगा। तो ये कितने कंडीशंस हो रहे हैं देखो, चेक 1 2 3 4, ये 16 कंडीशंस इंटू 4। तो जब k इक्वल टू 1 था तब व्हाट इज 16 इंटू 4? 64। 64. और ये 4 बार होगा, राइट? क्योंकि k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, ये 1 2 3 4 k की वैल्यू के लिए होगा। तो ये होगा 64 इंटू 4 टाइम्स। तो 4 4 जा 256 16, 256. 256. So there will be 256 different type of calculation that are going to happen. पर मैंने आपको ये k इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ 6 कंडीशन दिखाई है आपको, सिर्फ 6। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। हम लोगों को पता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कैसा है? ये 1 1 ये डायगोनल हो गया ना। Yes. तो अगर ये 0 किसी चीज में हम लोग ऐड करेंगे, 0 मतलब डायगोनल में, डायगोनल मतलब 0 में 0 ऐड कर रहे हैं, क्या वो 0 से छोटा रहेगा? ये कुछ कंडीशंस है जो हम लोगों ने वैसे तो चेक नहीं करनी चाहिए, बट है, एल्गोरिथम तो करेगा। तो ये जहां जहां हम लोग 1 1 1 1 1 1 ये कॉमन आ गया है, जहां पर डायगोनल एलिमेंट आ गए ना, तो ये कंडीशंस को इग्नोर ही कर देंगे। तो वी विल इग्नोर दिस, ओके? ये 4 कंडीशंस। यहां देखो ये भी डायगोनल एलिमेंट आ गया, यहाँ ये डायगोनल एलिमेंट आ गया, यहाँ ये डायगोनल एलिमेंट आ गया, तो हम लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया, बिकॉज adding 0 to any cost will never be less than itself. और दूसरी बात, यहां पर तो एडिशन में डायगोनल नहीं आ रहा है, मगर यहां पर आ रहा है डायगोनल। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, विल ऐड दिस एंड वो डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये भी एक इलीगल कंडीशन होती है कि 2 सोर्स है, बीच में 1 है और 2 तक ही जाना है। ऐसा पॉसिबल है क्या? 1 को बीच में रख के 2 से 2 का पाथ निकाल रहे हैं? नहीं। तो ये कंडीशन भी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये भी कंडीशन उसी की जैसी है, 3 से 3 को जाना है, ये गलत है, और ये 4 से 4 को जाना है, ये भी गलत है। So what I am doing is now I am talking about only the legal cases. I'll erase everything. ये जो बोर्ड में आपको दिख रहा है ना, ये सब डायगोनल वाला चीज है, ओके?
So these four conditions don't hold. This one, and this one also don't hold, because you are trying to calculate a distance from same source vertex to same destination vertex from a third vertex y. कि अगर x to y जाए और y to x जाए, अगर छोटा डिस्टेंस मिलता है तो x to x का डिस्टेंस छोटा हो जाएगा. So this doesn't hold, क्योंकि हम लोग सेम वर्टेक्स से सेम वर्टेक्स का डिस्टेंस नहीं निकालते. तो बस्टी कंडीशंस कौन सी है? एक तो ये दो सोर्स है, देखो दो सोर्स में है, आई दो है, दो सोर्स है, वन इंटरमीडिएट है. तो मैंने यहाँ पर डायग्राम निकाली है. तो ये वन है जो है, ये के है, और ये दो सोर्स है, शुरुआत में दो सोर्स है, के वन है. ओके, देखो के वन है और ये दो सोर्स है. तो पॉसिबल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 to 3 and 2 to 4. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 to 3 and 2 to 4. So 2 to 3 ये डिस्टेंस और 2 to 4 ये डिस्टेंस है. और आगे आप देखो यहां पर डिस्टेंस 3 to 2 और 3 to 4 है, मगर अब ये 3 है, सोर्स नोड 3 रहेगा. तो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं. सोर्स नोड अगर 3 रहेगा तो इंटरमीडिएट नोड तो 1 ही रहेगा. पॉसिबल रास्ते कहाँ है? वो 2 पे जाएगा या 4 पे जाएगा. ठीक है ना? ये देखो, ये 3 to 2 जाएगा और 3 to 4 जाएगा. तो वो यहां दिया है 3 to 1 और 1 to 2, 3 to 1 और 1 to 2. अब दूसरा क्या रहेगा? 3 to 1 और 1 to 4, 3 to 1 एंड 1 to 4. ये देखो 3 to 1 1 to 4 मतलब 3 4. और लास्ट वाला क्या है? तीसरा 4 1 1 2. देखो ये 4 1 1 2 और क्या बचेगा? 4 1 1 3, 4 1 1 3 मतलब 4 3 का डिस्टेंस. ओके, सो हम लोगों ने फिर ये कंडीशंस निकाली थी. ये दो मैंने डायग्राम में बताया आपको, फिर ये दो और ये दो. जब K1 रहेगा तब 1 2 3 4 5 6 लीगल कंडीशंस निकली. जब K2 रहेगा और 6 निकलेगी, K3 बनेगा और 6 बनेगी, K4 निकलेगा और 6 बनेगी. तो कितना टोटल कंडीशंस होगा? 24. 24. हम लोगों ने टोटल कितना देखा, कितना लगने वाला है? 256. 256. तो ये 24 इसमें ही वो कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके, तो ये कैलकुलेशन हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से देखते हैं. ये के जो है हम लोग 1 करेंगे पहले, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे. तो अब D1 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये D0 है हमारा इनिशियल मैट्रिक्स. तो जब हम लोग D1 कैलकुलेट करेंगे तो ये K को 1 रखेंगे. ओके, ये K को हम लोग 1 रखेंगे. सो हम क्या करते हैं, ये देखो इस तरीके से आपको करना है. ये ऐसा ड्राइंग कर लो वहां पर. ठीक है, इस तरीके से. क्योंकि ये 1 है तो 1 नंबर का कॉलम और 1 नंबर का रो, इसको इस तरीके से खींच लीजिए. ऐसा ओवल जो है ना, वो ओवल खींच लो. दिस इज द सेकंड स्टेप दैट you have to follow. Now what we'll do, we'll do some calculations, and if you don't want to do it here, we can write the second matrix and then we'll do the calculations over there. So I'll erase this, and we'll write the same here. So this is the D1 matrix
और हम लोग ये पहला रो और पहला कॉलम लिख लेते हैं पहले 0 8 इंफिनिटी 1 दिस इज इंफिनिटी दिस इज 4 एंड दिस इज इंफिनिटी और थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं मैं और ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ठीक है। सो पहला स्टेप ध्यान में आ गया क्या ये ओवल्स खींच लो यस यस सर। ओके अब को क्या करना है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो लिख दो हो गया। अब तीसरी बात तो डायगोनल एलिमेंट 0 कर दो। अब रो और कॉलम जहां पर ओवल खींचा है ना हम लोगों ने ओवल्स तो ये देखो ये इंफिनिटी है ओवल के अंदर रो में कॉलम में इंफिनिटी है ना हाँ यस सर। तो इंफिनिटी है यहाँ यस पर सर तो ये जो रो है ये पूरी रो यस सर ऐसी वैल्यूज उठा के लेकर आओ जो है वो लिख दो तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है इंफिनिटी ओके और नीचे आओ यहाँ पर क्या है इंफिनिटी यहाँ पर भी इंफिनिटी फिर इंफिनिटी उसकी रो ऊपर देखो इंफिनिटी उसका पीछे वाला मैट्रिक्स मतलब D1 का D0 है ना तो पिछला मैट्रिक्स देखना है 2 9 तो वो उठा के लेकर आओ और ये 2 9 यहाँ लिख दो ये हो गया कॉलम के लिए। अब रो के लिए देखते हैं ये जो रो है जिसको हम लोगों ने ओवल खींचा है वहां पर भी इंफिनिटी है ना हाँ ये तो उसकी सारी उसके भी Yes. वैल्यू सारी ऊपर से उठा के लेकर आओ और यहाँ लिख दो पर अब यहाँ पे तो ऑलरेडी भरा हुआ है 109 तो हमें कोई नया डेटा नहीं है कि जो यहाँ से लाके यहाँ भर सकते हैं ओके क्लियर। यस अब Yes, दो sir. वैल्यूज है जो हमारे पास में नहीं है यस सर दो वैल्यूज है ना कि जो हमारे पास में नहीं है यस तो यहाँ पे की पुरानी वैल्यू क्या है इस पॉट की इंफिनिटी 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 और यहाँ की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी नई वैल्यू कैलकुलेट इंफिनिटी देखो ये 8 से लेकर ये 4 अब ये कैसा देखना है मैं बताता हूँ आपको ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 तो ये एक प्रकार से क्या होता है देखो 3 है और ये 2 है राइट 3 से लेकर 2 तक पहले कोई डिस्टेंस है क्या 3 से लेकर 2 तक इंफिनिटी है 3 से लेकर 2 तक पाथ क्या है इंफिनिटी पर अब हम लोग कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं ये देखो ये 4 जो है ये डिस्टेंस कौन सा है 3 to 1 है राइट यस 3 to 1 4 और ये 1 to 2 है करेक्ट यस तो मैं ऐसे लिखता हूँ 3 to 1 और 1 to 2 3 to 1 डिस्टेंस हो गया 4 और 1 to 2 हो गया 8 8 और ये डायरेक्ट 3 to 2 क्या डिस्टेंस है इंफिनिटी इंफिनिटी लेस है ना यस हाँ यस तो फिर ये अपडेट कर देना पड़ेगा हमको 3 to 2 तो 3 Yes. to Yes. 2 मतलब ये है 3 to 2 राइट अपडेट कर दो 8 + 4 12 12 ओके शायद आपको ये अगर मैथमेटिक्स समझ में आ गया है तो ये एल्गोरिथम पूरा समझ में आ गया होगा वो फॉर लूप्स भी समझ में आ जाएंगे तो आई इरेज दिस और एक देखते हैं ये वाला मतलब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 3 to 4 3 to 4 पर ये 3 to 1 और 1 to 4 3 to 1 4 है और 1 to 4 क्या है 4 1 to 4 1 1 1 3 to 4 रास्ता है ही नहीं 3 से 4 का रास्ता है इंफिनिटी इंफिनिटी पर ये 4 + 1 5 लेस लेस इंफिनिटी है तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे अपडेट अपडेट तो ये देखो ये 1 के लिए हो गया 1 हमारा इंटरमीडिएट था अगली बार क्या होगा 2 इंटरमीडिएट रहेगा 2 उसके आगे 3 इंटरमीडिएट रहेगा उसके आगे 4 इंटरमीडिएट 4 सो हम लोग अब अगला मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं
आई इरेज दिस। अब हमारा D1 स्टेप हो गया है। अब हम लोग D2 स्टेप करेंगे। नीचे भी कर सकते हैं मगर मैं साइड में करता हूं। D2 इज इक्वल टू ब्रैकेट D2 यहाँ हो जाएगा। D3 को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रक्चर। ये D3 हो जाएगा हमारा, और फिर ये D4, ये D4। ओके, अब D2 की वैल्यूज मुझे बताओ कि मैंने कौन सी लिखनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये डॉट है, ये दूसरा डॉट 8 टू की 2 वाले रो 2 वाला कॉलम 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम लिखना है। तो 8 0 0 12 2 और ये 2 नंबर का infinity इंफिनिटी 0 इंफिनिटी 0 infinity 1 इंफिनिटी और हमने बोला था डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर। डायगोनल zero ओके, और एक चीज है, मैं इनको थोड़ा सा गोल कर देता हूँ, कलर चेंज कर देते थोड़ा, तो हमें पता रहेगा कि हम लोगों को कौन से I क्या है और J क्या है। ये एक्चुअली हमारा K है। ओके, ये K के लिए किया है। मैंने आपको बोला था, एक स्टेप बोला था, आपको याद होगा कि जहां पर भी इंफिनिटी वाले है, गैलन नहीं है नहीं कॉलम में रो नहीं, में। हम रो में है। हाँ तो ये रो का ये इंफिनिटी है, तो ये है ना, तो ये Yes. कॉलम हाँ। उठा के लाना Yes. तो और as it is 4 और इंफिनिटी उठा के 4 और 4 infinity infinity. infinity आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट उठा के क्यों रखा है हम लोगों ने। वो जो कंडीशन है कुछ yes sir उसमें हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहां पर भी इंफिनिटी है, तो वो यहाँ से पिछला वाला One. मैट्रिक्स, ठीक है ना, पिछला वाला करना, ये नहीं करना है, ये वाला करना है। 1 इंफिनिटी 5 5 0। अब कहाँ कहाँ ब्लैंक्स है बताओ, कितने ब्लैंक्स हैं? 2 यहाँ पर एक blank है two blanks और यहाँ पर एक ब्लैंक है, राइट, 2 ब्लैंक्स है। तो आपको तो वैल्यू कैलकुलेट करते आती है, अभी बताओ। ये 8 और ये 1, तो ये आती है 9 वैल्यू। यहाँ पर क्या वैल्यू मिली? 9 इंफिनिटी infinity तो 9 छोटा है ना, 9 infinity. से तो yes ये छोटा अपडेट हुई अपडेट हो जाएगा, करेक्ट। 3 अब ये ऊपर जाओ, ये 1 है और ये 2 है, 3 और पहले क्या था? 3 तो 3 वैल्यू अपडेट। 3 अपडेट हुई। प्लीज चेक वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। yes sir ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे और बताओ कि यहाँ क्या करना पड़ेगा अभी। सी एवरीबॉडी पे अटेंशन, तो आपको है ना ये आसानी से अगला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके आएगा। 3 number of point कॉलम 3 आणि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो लिख देता हूँ 4 12 0 5 और कॉलम भी लिख देता हूँ 9 1 9 1 1 0 3 0 3 और ये 0 कर देते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर ओवल खींच देते हैं, ठीक है ना। अब k की वैल्यू का मतलब क्या हो गया? k इज व्हाट? k इज 3, मतलब D3, k 3 है। अब यहाँ कोई इंफिनिटी है नहीं, तो कैलकुलेशन ज्यादा होने वाले हैं इस बार, राइट। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 6 कैलकुलेशन होने वाले हैं। तो चलो ऊपर से शुरू करते हैं। ये पुरानी वैल्यू 8 है यहाँ पर,
और ये 9 और 12 बड़ा हो जाएगा ना। 8 9 + 12 21 होगा, तो 8 छोटा है तो 8 ही लिखो, राइट। यस। अब यहाँ पे 9 और 5 14 हो जाएगा, राइट। 1 ओके, वन 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 लिख, वेरी गुड। अब ये 4 और 1 5 होगा, 5 5 5 बिकॉज Yes. इंफिनिटी से छोटा है, राइट। छोटा है। हाँ, अब यहाँ पर 5 + 1 = 6, यहाँ क्या है, इंफिनिटी 6 infinity 6 infinity अब यहाँ पे देखो तो यहाँ 4 और ये 3 7, पहले वैल्यू क्या है, इंफिनिटी 7 ले। infinity 7 ठीक है। अब ये है 12 और ये 3 12 15 और 15 15 और यहाँ पर है 2 2 तो 2 2 तो गुड। ओके चलो, हो गया हमारी स्टेप। आंसर चेक करते हैं। 891, so 891 is correct. 5016, 41205 and 7230 करेक्ट। ओके, अब D4 कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अभी लास्ट वाला है, इसमें हमारा आंसर आ row जाए। and 4 4 column number of row and column फोर्थ नंबर ऑफ रो एंड फोर्थ नंबर का कॉलम। तो ये है रो 7 2 3 एंड दिस इज 0 एंड हियर यू कैन राइट 1 6 5। diagonal elements should be 0. Okay, these are 0 diagonal elements. Okay, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई क्या, ये 3 थोड़ा यहाँ होना चाहिए था शायद। I'll just erase and rewrite it. That happens actually. So this is 3. Now what we'll do, we'll draw an oval for this column and for this row. Now there is no infinity in any row or any column. In fact, in the ovalized column and ovalized row, No. there is no infinity. नो। So we'll have to calculate all the values. तो चलो ये कैलकुलेट करो, ये दो करते हैं पहले। तो इससे इधर जाना है और इससे इधर जाना है। 2 + 1 3, पहला वैल्यू क्या है 3 8 3 8 3 ये 3 + 1 4 होता है, यहाँ पर क्या है 4 9 था 4 9 4 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करो, 6 + 7 बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो 5 ही रहने। 30 5 ये 6 और 3 9 होगा, पर ये 6 यहाँ पर क्या 1 है, 6 1 तो 1 ही रहने दो, राइट। 1 अब यहाँ का वैल्यू बोलो 7 और 5, ये तो 4 ही छोटा है, 4 और 5 और 2 7, ये 5 और 2 7, अपडेट वैल्यू 12, तो 7 अपडेट कर देते हैं। 7 तो लेट अस वेरीफाई द आंसर, बट आई इरेज दिस फर्स्ट। ये थोड़ा सा कुछ 5 था ना वहां पर, I'll write down the 5 over here. yes Okay. sir. So 0 3 4 1 5 0 1 6 4 7 0 5 and 7 2 3 0. So this is our answer. So these are the all pair shortest path. मतलब अब 1 से लेकर 4 तक सोर्स 1 है और ये 4 तक। देखो यहाँ कुछ गलती हुई है क्या, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट वेरीफाई करते हैं हम लोग। 1 to 4 शॉर्टेस्ट पाथ 1 है ना, yes और ये देखते हैं हम लोग, ये 4 to 3 जो है ना, ये 9 था। अब हमें क्या मिला है, 3 मिला है। 4 to 3 3 मिला है, कैसे 4 to 2 और 4 2 to 1। 2 and 2 to 3 तो वो कहाँ मिला होगा, ये k = 1 है, k = 2 है। 4 to 2 और 2 to 3 राइट है ना, ये 2 बीच में आया है, तो k जब 2 था तब मिला है, करेक्ट। यहाँ नहीं मिला था, यहाँ मिला है। So you can verify any distance. So you have got a matrix. So आप बोलो कि 2 से 1 को जाने का रास्ता, 2 से 3 को जाने का, 2 से 6 को जाने का, या फिर 3 से 1 को, 3 से 2 को, 3 से 4 को।
और इसी तरह से 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, तो सारे डिस्टेंसेस हम लोगों को मिल जाते हैं. I think the concept is clear here. Shall we solve another example? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is another example. Now you tell me 1, 2, 3, 4 यहाँ पे D0 है, तो D0 बताओ कि ये क्या वैल्यूज रहेगी D0 की. उसके बाद में एक छोटा एग्जांपल लेंगे हम लोग 3 नोड वाला, एंड देन विल फिनिश दिस. D0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. तो 1, 2, 3, 4. चलो बताओ 1 से 2 All diagonal. और डायगोनल 0, 0. 0. किसी के घर पे ना बातें चल रही है, थोड़ा सा माइक बंद रखो. हाँ, चलो अब बताओ ये 1 से लेकर 5 बताने आपको. 1 to 2 क्या डिस्टेंस है? 3. 3. 1 to 3, Infinity. 1 to 4, 7. 7. 2 to 1, 8. 2 to 3, 2. 2 to 4, Infinity. 3 to 1, Ayu. 3 to 2, Infinity. 3 to 4, 1. 1. 4 to 1, 2. 2. 4 to 2, 2. Infinity. 4 to 3. Infinity. अब D1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? D1 कैलकुलेट करना मतलब क्या कि we'll have to keep A to be 1, बीच वाला वैल्यू 1 रहेगा, राइट? 1. तो ये स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? First row and first column. First row and first column. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिख लेते हैं. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 0, 8, 5, 2 और 0, 3, इंफिनिटी 7, और इसको ओवरलाइज कर दो. हो गया. दूसरा स्टेप बोलो. Diagonal elements. Diagonal element 0. 0 करवाना है, ठीक है? तो दिस इज 0 एंड दिस इज also 0. हो गया. अगला स्टेटमेंट Infinity. Infinity वाली row. इंफिनिटी वाले as it is. 2 और ये इंफिनिटी उठा के लाना पड़ेगा. 2 और 0 के नीचे इंफिनिटी. हो गया. अब ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? Yes. Yes. चलो Yes. 8 और 7 15, राइट? 15. 15. 5 और 8. 8, 8. इंफिनिटी 8, 8. और ये 5 और 7 1. 1. 12. 12, 1. 1. ये 2 और 3 5. 5. 5. 5. ये हो गया. ओके, सो यू हैव कैलकुलेटेड द न्यू वैल्यूज. T2 कैलकुलेट करो आप यहाँ से. T2 के लिए क्या करना पड़ेगा? Second row and second column. Second row and second column. सेकंड रो और सेकंड कॉलम लिख लो. सेकंड रो Second column. 8, 0, 2, 15, और सेकंड कॉलम भी लिख लेते हैं 3, 0, 8, 5. इनको ओवरलाइज कर लेते हैं. ओवरलाइज करना मतलब ये ऐसा थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं ये रो और इस कॉलम को. वैसे ओवल भी नहीं है, बट ठीक है, चलो. ओके. अब Diagonal elements. Diagonal element 0. डायगोनल एलिमेंट 0 करते हैं. ओके, सो ये डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया. ये 0 है ऑलरेडी, इसको 0 करते हैं और ये लास्ट वाला भी 0 कर देते हैं. चलो ये भी स्टेप होगी. अब
इंफिनिटी ये रो में भी नहीं है और कॉलम में भी नहीं है, करेक्ट? कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करो। चलो 3 और 2 5, पहले क्या है इंफिनिटी, तो 5 छोटा है, राइट? 5 5 infinity और ये 15 और 3 होते हैं 18, होता है 7, तो 7 ही छोटा है। 7 अब यहाँ पे ये 8 और 8 16 होगा, पहला क्या है 5 5 तरीके से। अब ये 8 और 15, ये एक छोटा है ना, ये 8 और 23 15 1 ये 5 और 5 10 हो जाता है, यहाँ पर 2, 10 2 ये 5 और ये 2 7 ये मैं जब 5 और 5 नहीं बोलना था, ये 8 और 5 ये बड़ा नंबर है, ओके? अब ये 5 और 2 7 होता है, यहाँ पर क्या था इंफिनिटी, तो क्या लिखो? 7 प्लीज चेक वेदर दिस इज करेक्ट। 0357 80215 5801 2570 एकदम करेक्ट है। अब D3 कैलकुलेट करते हैं। D3 के लिए हमारा सोर्स क्या रहेगा? ये D2 रहेगा, राइट? ये D2 हमारे लिए सोर्स रहेगा। अब ये D3 का ब्रैकेट निकाल देते हैं यहाँ पर, सॉरी ऐसा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं थोड़ा। और अब क्या करना पड़ेगा बताओ? राइट, थर्ड रो एंड third row and third column. 3 4 1 2 3 4, तो थर्ड रो लिख लेते हैं 5801 5801, जो हो गया थर्ड रो हो गया। थर्ड कॉलम लिख दो 5207 5207 और इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया मार्किंग यहाँ पर, और ये हो गया इसका भी मार्किंग। अब अगला स्टेप diagonal element 0 सो ये 0 और ये लास्ट एलिमेंट 0 हो गया। अब इसमें कहीं पे भी इंफिनिटी नहीं है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखते हैं। पहले यहाँ पर क्या है 3 और 7 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो ये 3 तो इन दोनों के टोटल से छोटा है, राइट? 3 और ये 5 और ये क्या होता है? 5 और 1 6 और 7 बड़ा है ना, 6 yes तो क्या अपडेट हो गई ये वैल्यू, ओके? अब ये दो वैल्यू कैलकुलेट करो, 5 और 2 7 7 5 और 2 7 होता है ना, 7 छोटा है ना, ओके? अब ये देखो 2 और ये 1 3 है, 3 15 है 3, राइट? अब ये वैल्यू 7 और 5 12 होता है, यहाँ पर क्या है 2 ये 7 और 7 14 और 1 15 होता है। 5 This is our final answer. Now let us check whether this is correct. 0356 7023 5801 2570, correct. Now we'll see the last step T4. तो लास्ट स्टेप में हम लोगों को मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। Now tell me the step, क्या करना पड़ेगा अभी? fourth row 2 5 7 0 और फोर्थ कॉलम भी लिखना पड़ेगा 6 3 1 0 और इसको मार्क कर लेते हैं। तो इसको मार्क कर लेंगे हम लोग इस तरीके से, इसको भी मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, मार्क हो गया। नेक्स्ट स्टेप diagonal element 0 और diagonal एलिमेंट्स को 0 0 करा दो, हो गया 0। चलो अब कैलकुलेशंस, क्योंकि इंफिनिटी नहीं है ना रो में है ना कॉलम में है। जब आपके स्टेप्स बढ़ने लग जाती है ना, तो ये इंफिनिटी का मामला जो है ना ये कम होते जाता है, ओके? आपको मुझे बताना है कि ये इंफिनिटी की वैल्यूज हम लोग डायरेक्ट क्यों लिख लेते हैं। आपको इस चीज पर सोचना है कि अगर किसी रो में या कॉलम में ऐसे इंफिनिटी है तो हम लोग पुरानी वैल्यू क्यों उतार लेते हैं। इसका मुझे आंसर ग्रुप पे बताना है आपको, ठीक है? या फिर ग्रुप पे वो टाइपिंग के लिए अगर वो डिफिकल्ट रहा
अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो देन यू कैन टेल मी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो ओरली. ओके चलो 1 to 2 तो ये 6 और ये 5. क्या लिखूं? 11 3 3 3 3. 3 7 और 6 13. 5 क्या लिखूं? 5. 5 5 ये वैल्यू 3 और 2 5. 5. 7 से छोटी है इसलिए 5 अपडेट हो गया. ये अपडेट हो गया. 2 2 7 और 3 10 होते हैं बट 2 छोटा है तो 2 रहे. 2 अब ये 1 और 2 3 होता है. 2 3 3 3 6 5 और 1 6 होता है. 6 तो we have got the answer D. D4 मिला है. आंसर मिल गया है. लेट अस चेक द आंसर. 0356 5023 3601 2570. So this is correct. This is our answer. This is the all pair shortest path. Okay. एक छोटा एग्जांपल और देख लेते हैं. Hope you have understood this example. yes sir yes sir चलो इसका मैट्रिक्स बोलो. D0 मतलब इनिशियल मैट्रिक्स. ओके ये 0 मतलब k का वैल्यू 0 नहीं होता है. ओके k का वैल्यू अब क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, k का वैल्यू 2 हो सकता है और 3 हो सकता है. तो 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा हमारा ये कैलकुलेशन. तो पहला है D0. सो ये 1 2 अरे 4 ही नहीं, 4 नहीं है, 3 है. ओके सो आई विल जस्ट इंक्रीज द स्पेस. 1 2 3 1 2 3. डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 रहेंगे. 1 to 2 का बोलो क्या है वैल्यू? 4 1 to 3 7 2 3 7 2 to 1 2 to 1 1 1 1 2 to 3 2 2 3 to 1 6 infinity 3 to 2 6 infinity infinity. ओके अभी D1 कैलकुलेट करो. D1 कैलकुलेट करो. अब D1 के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो. and select first first row and first column first row first column First row first column. So first row is 0 4 7 and first column is 0 1 6. चलो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं. मार्क इट. मार्क कर दिया. नेक्स्ट स्टेप. diagonal element 0 infinity हो गए. डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए. कहीं इंफिनिटी है यहाँ पर? calculate हाँ इंफिनिटी नहीं है. कैलकुलेट करो. 7 + 1 8 होता है. यहाँ पर 8 लिख सकते हैं. 2 2 नहीं 2 2 ये 6 और ये 4 10 होते हैं. यहाँ पर क्या है? 10 10 10. 10 9 तो D1 हो गया. अब ये D1 पे के बेसिस पर D2 करते हैं. और ये लास्ट वाला D3 रहेगा. राइट. वन टू थ्री. यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 2 3. ये भी 1 2 3 1 2 3. तो अब क्या करना है D2 के लिए? second column 0 2 और सेकंड कॉलम 4 0 10 और इसको मार्क कर देते हैं. ओके मार्क कर दिया. अब diagonal element 0 हो गया. अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. राइट. दो ही वैल्यूज है ना कैलकुलेट करने की. तो ये होता है 4 + 2. यहाँ क्या करूँ? 6 6 आया. 4 + 2 is 6 and it is less than 7. तो अपडेट हो गया. अब यहाँ पर 10 है और यहाँ 11 होता है. 6 6
6 क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ज्यादा आती है तो ये पुरानी वैल्यू ही ठीक रहेगी। तो ये हो गया हमारा काम। अब अगला स्टेप करना पड़ेगा, D3 कैलकुलेट करो फाइनल। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। व्हाट इज दिस वन? चलो बताओ। थर्ड रो थर्ड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 6 थर्ड 10 कॉलम 0 और थर्ड कॉलम है 6 2 0। चलो इसको मार्क कर लेते हैं पहले। So we'll mark it। अब 1 2 3 4 डायगोनल एलिमेंट करो, है ना? डायगोनल एलिमेंट्स यस 0 करो। अब बताओ 6 और 10 16, 4 4 4 2 और 6 is 8। 1 1 1 1 मतलब ये इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, राइट? yes So this is your answer. Let us check out. Let us check out the answer. 046102 and 610. Okay, so this is correct. Any queries? Do you have any questions? Here we finish this lecture, and at the same time we have also finished our entire syllabus.